سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ صوبائی دارالحکومت لاہور میں سموگ کی حالت بدستور بدترین ہے۔ شہر لاہور فضائی آلودگی کے حوالے سے آلودہ ترین شہروں کی فہرست سے نہ نکل سکا۔ مزید کیا صورتحال ہے جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز مبین حیدر سے، جو اس وقت مال روڈ پر موجود ہیں۔ جی مبین، بتائیے۔ بالکل یہ صورتحال ہے، اس وقت بھی ہم لوگ مال روڈ کے اوپر ہی موجود ہیں، اور آپ تو جانتے ہیں کہ جیسے ہی ہر سال کی طرح اس سال بھی سردیوں کا آغاز ہوا ہے تو اسموگ نے پورے شہر کو آ گھیرا ہے۔ اسموگ ہر جگہ نظر آتی ہے ہمیں، اور محکمہ موسمیات والوں کا بھی کہنا ہے کہ پراپر پریکاشنری میئرز نہ لینے کی وجہ سے اور فیکٹریز پہ اور گاڑیوں کے دھوئیں پہ کنٹرول نہ رکھنے کی وجہ سے اسموگ دوبارہ سے اسموگ کا سامنا کرنا پڑا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صورتحال بنے گی، کیونکہ ابھی بھی AQI انڈیکس لاہور کا کافی زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست سے لاہور ابھی بھی جو ہے نہیں نکل سکا، ٹاپ فہرست پہ موجود ہے ابھی بھی شہر لاہور۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا صورتحال بنے، کیونکہ باب انتظامیہ کی طرف سے بھی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا کہا جا رہا ہے۔ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ کوشش کی جائے کہ گھروں سے بلا ضرورت سفر سے گریز کریں، اور جو بائک سوار ہیں یا جو پیدل چلنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ جب گھر سے سفر کے لیے نکلیں تو ماسک کا خاص طور پر استعمال کریں، اور منہ پہ جو ہے بار بار ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ماریں، آنکھوں کو جو ہے بار بار پانی سے صاف رکھیں اور آنکھوں کو نم رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ سانس کے اور پھیپھڑوں کی جو بیماری اسموگ سے لاحق ہوتی ہے اس سے بچا جا سکے۔ اس کے ساتھ ان کا کہنا تھا کوشش کریں چشمے کا استعمال کریں، جو بزرگ اور بچے ہیں بلا ضرورت گھروں سے سفر کرنے سے گریز کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ طلبہ کے لیے بھی یقینی بنایا گیا ہے کہ تمام تعلیمی اداروں کے اندر جاتے وقت جو ہے ماسک کا استعمال یقینی بنایا جا سکے، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں جو اسموگ ہے زہریلی گیسوں کا مجموعہ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے پھیپھڑوں میں اور پھیپھڑوں کا سانس کا جو ہے بیماری لاحق ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شہری بھی کس حد تک اس پر عمل پیرا ہوں گے، اور جو حکومت وقت ہے وہ کس حد تک اس پہ کارآمد ثابت ہوگی اور کس حد تک کوشش کرے گی جتنی مزید فیکٹری ہیں ان کو بند کیا جائے، جنہوں نے پراپر جو ہے سسٹم نہیں لگایا ہوا جس میں سے ڈسٹلڈ جو ہے گیس باہر ہے، اور جتنی دھوئیں دار گاڑیاں ان کو بھی بند کرنے کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کب تک جو ہے پراپر اس پہ کنٹرول کریں گے اور اسموگ سے کب تک ہماری جو ہے جان چھوٹ سکے گی۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ شہر میں فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھنے لگی۔ ہاسپٹلز میں ناک کان گلے کی بیماریوں کے مریضوں میں اضافہ۔ 3 روز میں شہر کے 5 بڑے ہاسپٹلز میں اسموگ سے متاثرہ 2000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ شہر میں فضائی آلودگی کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ۔ فضائی آلودگی سے ناک کان گلے کے مریض متاثر۔ ہسپتالوں میں اسموگ سے متاثرہ مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی۔ 3 روز میں شہر کے 5 بڑے ہسپتالوں میں اسموگ سے متاثرہ 2000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ جناح ہسپتال میں 3 روز میں 850، میو ہسپتال میں 700 اور گنگا رام ہسپتال میں 620 مریض رپورٹ ہوئے۔ ڈائریکٹر CDC ڈاکٹر یداللہ کا کہنا ہے کہ سانس لینے میں دشواری کے مریض گھروں سے باہر نہ جائیں۔ پھیپھڑوں اور دمہ کے مریضوں کو خصوصی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ کم قوت مدافعت والے افراد اسموگ سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ جلدی امراض میں اضافہ اور آنکھیں متاثر ہو سکتی ہیں۔ شہری ماسک اور اینک کا استعمال یقینی بنائیں۔ ڈاکٹر یداللہ نے مزید کہا کہ کم قوت مدافعت والے افراد اچھی خوراک، ڈرائی فروٹ اور قہوہ کریں۔ دھند کے باعث بابو سابو سے موٹر وے بند کر دیا گیا ہے۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے کو شیخ پورہ تک بند کیا گیا۔ بابو سابو ٹھوکر نیاز بیگ شاہدرہ چوک پر وارڈنز کی نفری بڑھا دی گئی۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز مبین حیدر سے۔ مبین، آگاہ کیجیے۔ بالکل اسامہ، شدید دھند کے باعث جو ہے بابو سابو سے موٹر وے بند کر دیا گیا ہے۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے کو شیخو پورہ تک بابو سابو چوک سے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے بندش کے باعث داخلی اور خارجی راستوں پر لوڈ بھی بڑھ گیا ہے۔ بابو سابو ٹھوکر نیاز بیگ شاہدرہ چوک پرانے راوی پل پر وارڈنز کی نفری بھی بڑھا دی گئی ہے، اور جو سٹی لاہور مستنصف فیروز کا کہنا ہے کہ دھند کے باعث شہر کے داخلی خارجی راستوں پر غیر معمولی ٹریفک کا لوڈ رہے گا، اس لیے کوشش کریں گے بلا ضرورت سفر سے گریز کریں تاکہ نہ آپ رش کا حصہ بنے نہ رش کے اندر جو اس کا شکار ہوں۔ جی شکریہ مبین۔ محکمہ تحفظ ماحول کی کارروائیاں بھی اسموگ کی شدت میں کمی نہ لا سکیں۔ اینٹی اسموگ اسکواڈز کے دن رات چھاپوں کے خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوئے۔ شہری کہتے ہیں بچے بیمار ہو رہے ہیں، فضائی آلودگی سے TB جیسی بیماری پھیل رہی ہے۔ محکمہ تحفظ ماحول پنجاب کے اینٹی اسموگ اسکواڈز کی کارروائیاں مگر لاہور سے اسموگ کے گہرے سائے چھٹ نہ سکے۔ گزشتہ 2 روز میں شمالی لاہور کے مختلف صنعتی علاقوں میں 126 یونٹس کی چیکنگ کی گئی۔ 25 یونٹس کو سربا مہر بھی کیا گیا۔ 3 یونٹس کی بھٹیاں مسمار جبکہ 7 یونٹ مالکان کے خلاف مقدمات درج کروائے گئے۔ 16 یونٹس کو معمولی خلاف ورزی پر وارننگ دے کر نوٹس جاری کیے گئے۔ صنعتی علاقوں کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ اسموگ کی وجہ سے گلے، پھیپھڑوں اور آنکھوں کے امراض لاحق ہو رہے ہیں۔ TB جیسی بیماری بھی لگ رہی ہے۔ بچے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ اسموگ دی وجہ سے بچیاں گلے خراب، کھانسی، زکام، بیماریاں لگ رہی ہیں۔ TB دی بیماری کوئی لگ رہی ہے، تیرا حل ہے ہی کوئی نہیں۔ نقصان تو بہت ہے، ٹائیفائڈ، ہیپاٹائٹس،
अपना छाती बच्चों की ये धुएं की वजह से बहुत सारा नुकसान हो रहा है। लाहौर में महकमा माहौलियात के 8 एंटी स्मोक स्क्वाड्स को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जो स्मोक सीजन में रात दिन फैक्ट्रियों और सनती यूनिट्स की चेकिंग में मसरूफ हैं। ट्रैफिक पुलिस का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 10 रोज में 4311 गाड़ियों को थानों में बंद किया गया। 10,000 से ज्यादा गाड़ियों को चालान टिकट जारी किए गए। जैन अली की रिपोर्ट देखिए। ट्रैफिक पुलिस भी स्मोक के फैलाव की रोकथाम के लिए इन एक्शन। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 10 रोज के दौरान 4311 गाड़ियों को थानों में बंद किया गया। 10,000 से ज्यादा गाड़ियों को चालान टिकट जारी किए गए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के 2-2 हजार रुपए के चालान काटे जा रहे हैं। क्रैकडाउन करने वाले ट्रैफिक के एहलकारों का कहना है कि सरकारी और नीम सरकारी मुलाजिमीन के खिलाफ भी बिला इम्तियाज कार्रवाई की जा रही है। जिस गाड़ी को थाने में बंद किया जाता है उसकी निगरानी भी की जाती है, ताकि कोई मुतल्लिका थाना बगैर सुपुर्दारी के गाड़ी ना छोड़े। जो सरकारी हो या नीम सरकारी हो, इसमें कोई भी हम बिल्कुल भी कोई भी फ़र्क महसूस नहीं करते। जो भी गाड़ी धुआं देती है हम उसको 2,000 रुपये फ़ाइन कर रहे हैं और उसका पासिंग और रूट कैंसलेशन के लिए दे रहे हैं, ताकि उसका पासिंग कैंसिल हो जाए और दोबारा वो पासिंग करवाए, अपना जो है पासिंग करवाने के बाद रोड पे आए। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स मुख्तलिफ हीले बहाने तराशने लगे। किसी ने नाकिस डीजल को धुएं का जिम्मेदार ठहराया तो कोई असल मालिकान पर जिम्मेदारी डालता रहा। मोबलाल पाइए ना, वो फिर कच्चा धुआं मार दियो, जिन्ना तक वो सड़ना है ना उन्हें वो स्पाई साफ हो जाएगी। इंजन पंप नोजल नवियां कराइया ने दियां। इस गाड़ियों का कोई कसूर नहीं। गाड़ी और मॉडल वाली गाड़ी है, इंजन नवा रखा हो तो उसका क्या कसूर है। हुण पंपों से डीजल ही 2 नंबर मिले तो वो हम क्या कर सकते हैं। डीएसपी मॉडल टाउन को सुए आसल, डीएसपी सदर को ठोकर न्याज बेग, डीएसपी शाहदरा को रावी पुल और डीएसपी मुगलपुरा को हरबंसपुरा और मनावा में कार्रवाइयां करने की हिदायत जारी की गई। कैमरामैन नुमान एजाज के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज़। गुलाब देवी टीचिंग हॉस्पिटल में स्मोक के खिलाफ आगाही वॉक का इनेकाद। डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ और तलबा की शिरकत। एमएस डॉक्टर हामिद हसन कहते हैं स्मोक के खिलाफ पूरी कुव्वत से खड़ा होना पड़ेगा। शहर में बढ़ती स्मोक के खिलाफ जंग, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी किसी से पीछे नहीं। गुलाब देवी टीचिंग अस्पताल में स्मोक के खिलाफ आगाही वॉक का इनेकाद। वॉक में डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और तुलबा की शिरकत। अस्पताल के एमएस डॉक्टर हामिद हसन और सीनियर डॉक्टर्स की खुसूसी शिरकत। एमएस डॉक्टर हामिद हसन कहते हैं स्मोक के खिलाफ पूरी कुव्वत से खड़ा होना पड़ेगा। मसला हर गुजरते दिन के साथ संजीदा सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। ये सेहत के लिए ख़तरनाक है, ग्रोथ के लिए ख़तरनाक है, छोटे बच्चों की जहनी उसके लिए और लंग्स की के प्रोडक्शन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ख़तरनाक है। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे, सोसाइटी के लेवल पे और गवर्नमेंट के लेवल पे सब मिलजुल के इसको ख़त्म करने के लिए काम नहीं करेंगे तो ये कम नहीं होगी, ये बढ़ती जाएगी। प्रोफेसर डॉक्टर जहीर अख्तर का कहना है कि दुनिया भर में 4 लेकिन पाकिस्तान में 5 मौसम है और 5वां मौसम स्मोक का है, जो हमारी कोताहियों की वजह से है। पूरी दुनिया में 4 मौसम होते हैं लेकिन लाहौर में 5 मौसम है और 5वां मौसम स्मोक का मौसम है। ये वो मौसम है जो इंसान खुद बनाता है, बाकी 4 मौसम अल्लाह की तरफ से आते हैं। गर्दोगबार, मट्टी, धुआं, फॉग और स्मोक का कॉम्बिनेशन स्मोक है। अब फेफड़ों की कौन सी बीमारी है जो इससे नहीं होती या ज़्यादा ख़राब नहीं होती? COPD है, अस्थमा है, हार्ट के मरीज़ हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से सूबे भर में 1 महीने के लिए स्मोक इमरजेंसी नाफिज है और शहरियों से एहतियात करने की अपील की गई है। जौहर टाउन में निजी स्कूल एंड कॉलेजेस गर्ल्स कैंपस में निगरान सूबाई वजीर इब्राहिम हसन मुराद ने बतौर मेहमान खास शिरकत की। इब्राहिम हसन मुराद ने नौजवानों को मुल्क का रोशन मुस्तकबिल और उम्मीद करार दिया। जौहर टाउन के निजी स्कूल में मॉडल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस निगरान वजीर ट्रांसपोर्ट, लाइफ स्टॉक एंड माइंस इब्राहिम हसन मुराद बतौर मेहमान खसूसी शरीक हुए। स्कूल के प्रिंसिपल सादिया आमिर और इवेंट कोऑर्डिनेटर नूर फातिमा समेत तालिबात की कसीर तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस से खिताब में निगरान सूबाई वजीर इब्राहिम हसन मुराद का कहना था कि पाकिस्तान बिलाशुबा कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है और इस मुल्क का कीमती सरमाया और उम्मीद हमारी नौजवान नस्ल है। Everyone is aware that youth of Pakistan is the future of Pakistan, and if they have the right knowledge, if they have the right skills, if they have the right attitude, if they have the right mindset, and if they share the right ideology, then the future of Pakistan will be a very bright future. स्कूल प्रिंसिपल सादिया आमिर ने कहा कि कॉन्फ्रेंस का मकसद बच्चों में तख्लीकी सलाहियत को परवान चढ़ाना है। MUN जो है ये
یہ بچوں کے اندر تخلیقی صلاحیتوں کو ڈیولپ کرتا ہے، لیڈرشپ سکلز، نیگوشیشن سکلز، ہاؤ ٹو سالو دا پرابلمس تھرو ڈسکشنز. اور اس پر ہم نے اپنی سالیڈیرٹی شو کی ود دا پیلسٹینین برادرز اینڈ سسٹرز. طالبات نے کانفرنس کو مفید اور شاندار قرار دیا. مجھے اس کانفرنس سے بے انتہا سبق ملے اور میں نے بہت کچھ سیکھا کہ ایک ایونٹ کو آپ کیسے چلاتے ہو، کہ آپ نے کس طرح چیزیں ارینج کرنی ہے، لوگوں کو کس طرح اکٹھا کرنا ہے آپ نے ایک پلیٹ فارم پر. اس میں نے کوشش کی ہے کہ ہم میکسیمم اسپانسرز ارینج کر سکیں اور ہمیں پریسٹیجیس کمپنیز جیسے ہائر ہے، کوئلہ 360 ہے اور ڈور اسٹیپ پیزا ہے، ان کی ہمیں اسپانسرشپ ملی ہے. مہمان خصوصی کی جانب سے طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے. کیمرہ مین محمد زہیب کے ساتھ محمد علی، لاہور نیوز. پنجاب کالجز کے زیر اہتمام یوم اقبال کے حوالے سے خصوصی تقریبات کا آغاز ہو گیا. پہلے روز مقررین نے نوجوان کو فکر اقبال پر خصوصی لیکچرز دیے. پنجاب کالجز کے طلباء نے کلام اقبال پیش کیا. شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے یوم پیدائش کے حوالے سے پنجاب کالجز کے زیر اہتمام تقریبات کا آغاز. حالی روڈ کیمپس میں فکر اقبال پر خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا. معروف بزنس مین اور نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے رکن میاں سلمان فاروق تقریب کے مہمان خصوصی تھے. سیکریٹری جنرل نظریہ پاکستان ٹرسٹ ناہید گل اور معروف وکیل رائے سعد نے بطور مہمان عزیز شرکت کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میاں سلمان فاروق کا کہنا تھا، اقبال کا پیغام آفاقی تھا، ان کی شاعری دین اسلام کے مطابق تھی. حکیم العلامت نے مغربی جمہوریت کو مسترد کیا اور بر صغیر کے حالات کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا خیال پیش کیا. انہوں نے نوجوانوں کو نصیحت کی کہ خود کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کرتے ہوئے ستاروں پر کمند ڈالنے والے بنے. علامہ اقبال نے مسلمانوں کو نہ صرف کہ جگانے کی کوشش کی بلکہ آپ کی خواہش تھی کہ آپ بنی نوع انسانی کو بھی یہ پیغامات پہنچائیں جو کہ ڈرائیو کیے گئے تھے اسلام کی تعلیمات سے. تقریب سے خطاب میں ناہید عمران گل نے اقبال کے پیغام کو اجاگر کیا، جبکہ رائے سعد نے اقبال کی شاعری کی اہمیت پر زور دیا. اس موقع پر پنجاب کالجز کے طلباء نے کلام اقبال پیش کیا. دیدائے دل پہ میرے خواب سجانے والے، حاصل روح خودی ہے تیری آزادی بھی، اپنی ملت کو یہ احساس دلانے والے، خاک طیبہ ہی تیری آنکھ کا سرما ٹھہری، عشق دانائے سبل دل میں بسانے والے، صدقہ حب نبی کلک گہر بار ہوا، حرف گنجینا و معنی کو لٹانے والے. تقریب کے اختتام پر ڈائریکٹر اسٹوڈنٹس افیئرز پنجاب کالجز حلیمہ سعدیہ نے مہمانوں کو شیلڈز پیش کیں. محکمہ اسکول ایجوکیشن کا ایک اور منصوبہ ادھورا. پینشن کیسز 1.5 سال بعد بھی آن لائن نہیں ہو سکے. محکمہ اسکول ایجوکیشن منصوبہ مکمل کرنے میں ناکام. پنجاب کے تمام 3.5 لاکھ اساتذہ کے لیے پینشن کیسز کو آن لائن کرنے کا اعلان کیا گیا. 1.5 سال بعد صرف 5 اضلاع کے کیسز ہی آن لائن ہو سکے. محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ابتدائی طور پر 5 اضلاع میں آن لائن پینشن کا نظام نافذ کیا. اٹک، گجرانوالہ، منڈی بہاؤالدین، حافظ آباد اور بہاولپور میں ہی پینشن کو آن لائن کیا گیا. محکمہ اسکول ایجوکیشن کا کہنا ہے کہ مذکورہ اضلاع سے پینشن کا کوئی کیس مینول نہ بھجوایا جائے. دیگر اضلاع کے حوالے سے ڈیٹا کو درست کرنے کا کام جاری ہے. فیروزپور روڈ پر واقع مقامی ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ میں 10ویں سالانہ ٹیچرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. کانفرنس میں پنجاب بھر سے 400 سے زائد اساتذہ نے شرکت کی. معروف ٹرینر مسرت مشہدی، قدسیہ کاشف، بشرا نقوی اور اظہار شاہ نے اظہار خیال کیا. ٹیچرز کی تربیت میں اعلیٰ معیار کیسے پیدا کریں؟ ٹیچرز کو بہتر تربیت ملے گی تو طالب علم بھی بہتر طریقے سے آگے بڑھیں گے. اس حوالے سے کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ سینٹر کے زیر اہتمام مقامی انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن میں 10ویں سالانہ ٹیچرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں پنجاب بھر سے 400 سے زائد اساتذہ نے شرکت کی. کانفرنس کی ماڈریٹر نوید شہزاد کا کہنا تھا، نصاب کی تیاری میں حصہ لینا ٹیچرز کا اتنا ہی حق ہے جتنا دوسرے پالیسی سازوں کا. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نصاب بنانے میں ٹیچرز کو شامل نہیں کرتے. استاد کا اتنا ہی حق بنتا ہے کہ وہ کریکولم ڈیزائن کا ایک حصے دار بنے جتنا کہ وہ لوگ جو کہ آ کے صرف ایک پالیسی بناتے ہیں. تقریب کے مہمان خصوصی سید بابر علی کا کہنا تھا کہ ہم بچے کو اسکول بھیجنے کے بعد اپنی ذمہ داریوں سے بری ہو جاتے ہیں، جو بہت غلط ہے. ہمیں اپنے بچوں کی گھر پر بھی پرورش کرنی ہوگی جس طرح ہمارے والدین کرتے تھے. آج کل کے والدین سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بچے کو اسکول بھیج دیا ہے اور یہ اسکول کی ذمہ داری ہے کہ ان کو سب کچھ سکھائے، اور آج کل کی والدین بچوں پہ یہ وقت نہیں دیتے. تو یہ آپ
ये जो असातिज़ा हैं या सानिया हैं, उनका ये फ़र्ज़ है कि बच्चों को ये छोटी चीज़ें बताएं जो उनके घर से उनको सफाई जो है। मारूफ ट्रेनर्स मुसरत मशहदी, कुदसिया काशिफ, बुशरा नकवी, इजहार शाह और दीगर ने भी कॉन्फ्रेंस से इजहार ख्याल किया। सरकारी महकमों के डेली वेजेस के लिए अच्छी खबर यह है कि महकमा ख़जाना ने कम से कम तनख्वाह में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया। अब सरकारी महकमों के मुलाजमीन को भी माहाना कम से कम तनख्वाह 32,000 रुपये मिलेगी। सरकारी महकमों के डेली वेजेस की भी सुनी गई। अब सरकारी महकमों के डेली वेजेस को 32,000 रुपये माहाना तनख्वाह दी जाएगी। इससे पहले निजी शोबा के हवाले से तनख्वाहों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी हुआ। महकमा ख़जाना के नोटिफिकेशन से हज़ारों वर्कर्स को फ़ायदा मिलेगा। सरकारी महकमों के डेली वेजेस की जानिब से काफ़ी अरसा से मुतालबा किया जा रहा था। फैसले का इतलाक़ तमाम महकमों के मुलाजमीन पर होगा। हुनर याफ्ता डेली वेजेस के लिए उनकी महारत के मुताबिक तनख्वाहें जारी होंगी। शादियों में वन डे शुरुआत की खिलाफ वर्जी का मामला, निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का सख्त नोटिस। शादियों में वन डे शुरुआत की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का हुक्म दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से कहा कि शादी तकरीबात में वन डिश और रात 10 बजे के औकात कार की सख्ती से पाबंदी कराई जाए। फार्म हाउसेस में होने वाली शादी तकरीबात में भी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। मोहसिन नकवी ने कहा कि वन डिश और रात 10 बजे के औकात कार पर पाबंदी न करवाने वालों के खिलाफ कोई रायत नहीं बरती जाएगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का घोड़ा चौक फ्लाई ओवर मनसूबे की पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी कहते हैं खुशी है कि रात से सुबह तक काम हो रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ फ्लाई ओवर प्रोजेक्ट का दौरा। वज़ीर आला ने प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया और स्टील फिक्सिंग के अमल का मुशाहिदा किया। मजदूरों से मुसाफा किया और तेज रफ्तारी से काम करने पर उन्हें शाबाश दी। मोहसिन नकवी का कहना था कि मंसूबे पर काम के दौरान मौसर ट्रैफिक मैनेजमेंट को यकीनी बनाया जाए। मंसूबा मुकम्मल होने से शहरियों को आमदोरफ्त में सहूलत और आसानी मिलेगी। सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से घोड़ा चौक डिफेंस मोड़ तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CBD इमरान अमीन और कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने वज़ीर आला को ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया गया कि घोड़ा चौक फ्लाईओवर 3 लेन्स पर मुश्तमिल है। मंसूबे पर तकरीबन 1 अरब 90 करोड़ रुपए लागत आएगी। इमरान अमीन का कहना था कि मंसूबे को वक्त से पहले मुकम्मल करेंगे। मंसूबे की तकमील के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सूबाई वजीर अजफर अली नासिर, डिप्टी कमिश्नर, DIG ऑपरेशंस, CTO और मुतालिका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसहाक डार पार्टी इलेक्शन सेल के चेयरमैन मुकर्रर। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का कहना है कि इसहाक डार का इलेक्शन सेल का सरबराह बनने से इंतखाबी सरगर्मियों में मज़ीद तेज़ी आएगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सदर शहबाज शरीफ ने सेनेटर इसहाक डार को पार्टी के इलेक्शन सेल का चेयरमैन मुकर्रर किया। पार्टी सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने नोटिफिकेशन जारी किया। मरियम औरंगजेब का कहना है कि पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्तों की वसूली, इंतखाबी ज़ाब्तों की निगरानी समेत दीगर मुतल्लिका अमूर को तेज़ी से मुकम्मल किया जाएगा। तजावुज़ात माफिया खिलाफ इदारों का एक्शन जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में 100 से ज़ायद थड़े, रैंप और शेड मिसमार कर दिए गए, जबकि LDA ने कमर्शलाइजेशन फीस नादहिंदगी पर रायबंड रोड पर 196 कनाल के मारूफ कंट्री क्लब को नोटिस जारी किया। रोज़ा ब्लांका कंट्री क्लब 1 अरब 41 करोड़ रुपए का नादहिंदा है। DC लाहौर की हिदायत पर तजावुज़ात माफिया के खिलाफ एक्शन। चीफ ऑफिसर इकबाल फरीद की निगरानी में रिंग रोड इंटरचेंज, बर्की रोड और ग्रीन सिटी से मुल्हिका इलाकों में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। 100 से जायद थड़े, रैंप और शेड मिसमार कर दिए गए। सरकारी अराजी पर 10 से जायद मकामात से गैर कानूनी कायमजुगियाँ और मलबा हटा दिया गया। MCL टीम ने कार्रवाई के दौरान सामान के 10 ट्रक भी कब्जे में ले लिए। कब्जा माफिया के खिलाफ मौजा हरबंसपुरा, अजीज भट्टी टाउन में भी ऑपरेशन किया गया। 1 अरब से ज्यादा मालियत की 30 कनाल सरकारी अराजी वागुजार करा ली गई। ऑपरेशन में असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार अनम फातिमा, MCL शालीमार अजीज भट्टी और वागा टाउन की टीमों ने हिस्सा लिया। मौके पर कायम 25 कनाल पर कायम आर्जी थड़े और झोंपड़ियों को हटा दिया गया। 5 कनाल पर तामीर करदा आर्जी इमारतों को भी मिसमार किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफिया हैदर का कहना है कि काबसीन को तामीरात से सामान निकालने का वक्त देने के बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। दूसरी जानिब LDA का भी नादहिंदगान के खिलाफ शिकंजा सख्त। रायबंड रोड पर 196 कनाल पर मुश्तमिल मारूफ कंट्री क्लब रोजा ब्लांका को नोटिस जारी कर दिया गया। क्लब कमर्शलाइजेशन फीस की मद में LDA का 1 अरब 41 करोड़ रुपए का नादहिंदा है। कबलजी अदालती अहकाम के बावजूद भी निजी क्लब इंतजामिया कोई फीस जमा नहीं करवा सकी। पंजाब फूड अथॉरिटी का से दुश्मन अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 6 माह के दौरान 971 फूड पॉइंट्स बंद, 306 मुकदमा दर्ज, 1,86,670 को इस्लाही नोटिस जारी किए गए।
पंजाब फूड अथॉरिटी का मुज़र अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन। कार्रवाई के दौरान 971 फूड पॉइंट्स सील, 306 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। 6 माह में 2,85,900 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, 32,280 पॉइंट्स को जुर्माने आयद, 1,86,670 रेस्टोरेंट को इस्लाही नोटिस जारी किए गए। डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर का कहना है कि अशिया के मयार की जांच के लिए 7,650 से जायद फूड सैंपल लेबोरेटरी टेस्ट के लिए भिजवाए गए। मयारी खुराक की यकीनी फराहमी के लिए रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। खुराक की तैयारी से तरसील तक तमाम मराहिल की कड़ी निगरानी की जा रही है। डीजी फूड अथॉरिटी ने मजीद कहा कि शहरी खुराक के चुनाव में मोहतात रहें, हमेशा ग़िज़ाइयत से भरपूर खुराक का इंतखाब करें। फ़लस्तीनियों पर वहशियाना इसराइली बमबारी के खिलाफ ताजरों में गम गुस्सा। हॉल रोड के ताजरों का इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज। शुरका ने गजा में जंग बंदी के लिए मुस्लिम ममालिक से किरदार अदा करने का मुतालबा किया। फ़लस्तीनियों पर इसराइली वहशियाना बमबारी के खिलाफ ताजिर भी सड़कों पर। खिदमत ग्रुप हॉल रोड के ज़ेरे एहतमाम रीगल चौक पर मुजाहिरा। ताजरों का हाथों में फ़लस्तीनी परचम उठाकर एहतजाज, इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। सदर खिदमत ग्रुप बाबर महमूद का गजा में जंग बंदी और इसराइली बमबारी रुकवाने के लिए मुस्लिम ममालिक से किरदार अदा करने का मुतालबा। फ़लस्तीनी मुसलमानों की जो हिम्मत, उन माओं की जुर्रत को सलाम जिन्होंने अपने बच्चों को शहादत के लिए पेश किया। चारों तरफ बमबारी हो रही है, लेकिन वो औरतें, वो हमारी बेटियां, वो नौजवान, वो बच्चे उसी बमबारी के पास आसपास रहते हुए अपने लोगों की मदद कर रहे हैं। ताजिर रहनुमा ने कहा कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए रिहायशी इमारतों, अस्पतालों और तालीमी इदारों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। आज वो फ़लस्तीनी माए, वो बच्चे, वो बुजुर्ग आज चीख के पुकार रहे हैं कि मुसलमानों कहाँ, और हमें मारा जा रहा है, हमारे बच्चों को शहीद किया जा रहा है, हमारी नस्ल कशी की जा रही है। हम इस बात का ऐलान करते हैं कि इंशाअल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा एक मुत्तफिका फैसला दे। इंशाअल्लाह हम अपने बेटे भी फलस्तीनियों के लिए पेश करने के लिए तैयार हैं। हम सब ये अहद करते हैं कि जो मुसलमानों के साथ फलस्तीन में इसराइल जो हरकत कर रहा है, हम उसको कंडेम करते हैं। एहतजाजी मुजाहिरे में साबिक सदर लाहौर चैम्बर मोहम्मद अली मियाँ, चेयरमैन प्याफ फहीमुर रहमान सहगल, सदर माल रोड सुहेल महमूद बट, जनरल सेक्रेटरी हाल रोड मौजम अली खान, बाव मोहम्मद बशीर और दीगर ताजिर रहनुमा भी मौजूद थे। निगरान वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं पाकिस्तान की 48% आबादी बच्चों पर मुश्तमिल है। यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज बनाने का मकसद पाकिस्तान के बच्चों को ख़तरनाक बीमारियों से बचाने के लिए रिसर्च करना है। मकामी होटल में 5वीं बैनुल-अक़वामी बाइनियल पेडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कॉन्फ्रेंस से खिताब में डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि पाकिस्तान की 48% आबादी बच्चों पर मुश्तमिल है। यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज बनाने का बुनियादी मकसद ही पाकिस्तान के बच्चों को खतरनाक बीमारियों से बचाने के लिए रिसर्च करना है। हम पंजाब की तमाम तिब्बी दरसगाहों में क्वालिटी रिसर्च को परवान चढ़ा रहे हैं। पंजाब के तमाम कार्डियोलॉजी अस्पतालों में प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की मुफ्त सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मासी में प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की सहूलत सिर्फ पाकिस्तान की अशराफिया को दस्तियाब थी। We align our vision in this specialty with the government and other stakeholders and other organizations, and we work together towards screening, early diagnosis and decreasing the burden of renal disease in pediatric age group. In dialysis and oncology, it is totally free irrespective of whether you are a rich or poor, because we think dialysis, even the rich people may not be able to afford it after a little while. So Punjab government has taken this initiative of having it totally free. कॉन्फ्रेंस से वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज डॉक्टर मसूद सादिक और दीगर ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। कैमरामैन नुमान इजाज के साथ सजाद हुसैन, लाहौर न्यूज़। गवर्नर पंजाब अली गौरेमान से नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के वक्त की मुलाकात। वक्त में 25वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका शामिल। वक्त की क़यादत डीजी इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटजिक स्टडीज़ मेजर जनरल मोहम्मद रज़ा इज़्द ने की। गवर्नर पंजाब ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के वफ्द को बताया कि किसी भी मुल्क की तरक्की में पॉलिसियों का तसलसल बहुत अहम है। हुकूमत ख़ास तौर पर इलाकाई तजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी राब्तों को बेहतर बनाने पर तवज्जो दे रही है। माज़ी करीब में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी बढ़ाने के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट कौंसिल का क़याम अमल में लाया गया।
नफरतें, मनफी रवैयों को ख़त्म और मस्बत सिमत अपनाने से ही मुल्क तरक्की करेगा। पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में पहले लोअर कोर्स की ट्रेनिंग मुकम्मल होने पर पासिंग आउट परेड हुई। तकरीब में एसपी हेडक्वार्टर्स हसन जावेद भट्टी ने बतौर मेहमान खास शिरकत की। पुलिस तर्जुमान का कहना है कि 28 ख़वातीन समेत 480 एहलकारों ने परेड में हिस्सा लिया। चाको चौबंद दस्ते ने मेहमान खसूसी को सलामी पेश की और खूबसूरत परेड का मुजाहरा किया। लोअर कोर्स का दौरानिया 4 माह था, जिसमें एहलकारों को जदीद तरीन, बेहतरीन और पेशा वाराना तरबियत फराहम की गई। एसपी हेडक्वार्टर्स हसन जावेद भट्टी का खिताब में कहना था कि हमें अपने फ़राइज़ मेहनत, ईमानदारी, फ़र्ज़शनासी से अदा करने होंगे। तमाम एहलकार तरबियत हासिल करने के बाद थाना कल्चर में वाज़ेह तब्दीली का बाइस बने। पुलिस एहलकार मेरिट, ईमानदारी से काम लें और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। लेस्को की बिजली चोरों के खिलाफ मुहिम जारी। लेस्को फील्ड स्टाफ टारगेट पूरा करने में मसरूफ़। मुबैना तौर पर बाकायदगी से बिल अदा करने वाले मुतअद्दिद सार्फिन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाए जाने लगे। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम के दौरान लेस्को फील्ड स्टाफ टारगेट पूरा करने में मसरूफ। मुबैना तौर पर बाकायदगी से बिल अदा करने वाले मुतअद्दिद सार्फिन के खिलाफ भी मुकदमात का इंदराज। ज़राए के मुताबिक मीटर खराब है या लेस्को अमले की कोई गलती है, सजा सारिफ को दी जाने लगी। लेस्को इंतजामिया ने हर सब डिवीजन को रोजाना 2 मुकदमा दर्ज करवाने का टारगेट दिया है। सर्द मौसम और बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई के बायस बिजली चोरी में कमी हुई है। ज़राए का कहना है कि मीटर खराब होने पर लेस्को का अमला खुद डायरेक्ट सप्लाई लगाता है और कार्रवाई के दौरान इन सार्फिन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करवाए जा रहे हैं। लेस्को अदादो शुमार के मुताबिक 56 रोजा मुहिम के दौरान 23,201 मकामात से बिजली चोरी पकड़ी गई। अब तक 11,574 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। बिजली चोरों के खिलाफ 22,145 मुकदमा दर्ज करवाए गए। बिजली चोरों से अब तक 1,90,41,37,000 रुपए के डिटेक्शन बिल चार्ज किए गए हैं। कैमरा टीम के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। लेस्को हुक्काम के सार्फिन को रिलीफ देने के दावे मगर अमली इकदाम न किए जा सके। सार्फिन की सहूलत के लिए बनाए गए कस्टमर सर्विसेज सेंटर भी रिलीफ देने में नाकाम। सार्फिन ने बिजली को रिलीफ न मिल सका। लेस्को हुकाम ने सार्फिन को रिलीफ देने के दावे तो किए मगर अमली इकदाम न हो सके। सार्फिन की सहूलत के लिए डिविजनल और सर्कल की सतह पर बनाए गए कस्टमर सर्विसेज सेंटर गैर फाल। सेंटर्स अमले के महदूद इख्तियारात के बाइस सार्फिन भी रुख नहीं करते। कस्टमर सर्विसेज सेंटर्स का अमला करंट बिल की इकसाद कर सकता है, न ही कोई रिलीफ दे सकता है। ज़राए के मुताबिक करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए थर्ड सर्कल के सेंटर्स में अमला सीट से गायब रहता है। कस्टमर सेंटर से सार्फिन को इकसाद का रिलीफ भी न मिलने की वजह से सब डिविजनल और डिविजनल दफातर में रश रहने लगा। 18 बरस से अमले के इख्तियारात में इजाफा नहीं किया गया। मोबाइल कस्टमर सर्विस भी बंद कर दी गई। सार्फिन बिजली की सहूलत के लिए 10 कस्टमर सेंटर बनाए गए थे। दूर दराज के इलाकों में मोबाइल कस्टमर सर्विस बंद करके वैगनेज सेफ्टी डायरेक्टोरेट के स्पुर्द कर दी गयी। लेस्को अमले का कहना है कि कस्टमर सेंटरों के इख्तियारात में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही इजाफा कर सकता है, लेकिन बोर्ड के इजलास में कभी इस मसले को अहमियत नहीं दी गई। एसई थर्ड सर्कल सिर्फ रिकवरी बेहतर बनाने में मसरूफ, जबकि साइल खवार हो गए। महंगाई से सताए आवाम की मुश्किलात कम नहीं हो सकें। यूटिलिटी स्टोर्स पर रिलीफ बन गया शहरियों के लिए तकलीफ। सब्सिडाइज अशिया की दस्तयाबी यकीनी नहीं बनाई जा सकी। चीनी, दालें और काले चने गायब, खरीदार परेशान। सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगे हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज अशिया की सप्लाई बदस्तूर मुतासिर। चीनी, दाल माश, दाल मसूर और काले चने भी खत्म हो गए। शहरी सस्ती अशिया के असूल के लिए ख्वार। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम सब्सिडाइज अशिया की सप्लाई चेन बेहतर बनाने में नाकाम हो गए। शहरियों का कहना है कि कभी आटा दस्तयाब नहीं तो कभी चीनी नहीं मिलती। हुकूमत सब्सिडाइज अशिया की सप्लाई को बेहतर नहीं बना रही। हुकूमत पूरियां करके रखे ना चीज़ां दवे ते लोग एक जगह तो ना परेशानी हो, एक जगह तो ले लें। कभी चीनी होती है कभी नहीं होती। महीने में 2 दफ़ा चीनी आ रही है। आटे का भी माल को इतना अच्छा नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम का मौकिफ है कि चीनी, आटे और घी की सप्लाई जारी है, जबकि दालों और दीगर सामान की सप्लाई स्टोर्स की डिमांड के मुताबिक की जाती है। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मुसलसल इजाफा। शहरियों को 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए। आटा, चावल, चीनी और घी की कीमतों में फिर इजाफा। गरीब तो गरीब, मिडिल क्लास तबका भी पिस कर रह गया।
महंगाई महंगाई और महंगाई, अवाम की एक ही दुहाई। पेट भरने की बुनियादी अशियाए जरूरिया की महंगाई का तसलसल जारी। आटा, चावल और घी फिर महंगाई की लपेट में। 20 किलो आटे का थैला 50 रुपए महंगा, कीमत 2700 रुपए तक पहुँच गई। पुराना चावल 20 रुपए महंगा, फी किलो कीमत 370 रुपए हो गई। दर्जा सोम के घी और ऑयल के 20 किलोग्राम के कार्टन में 300 रुपए का इजाफा। चीनी की फी किलो कीमत 140 रुपए तक जा पहुंची। गंदम की कीमत में 300 रुपए फी मन इजाफा हो गया। कीमत 4400 रुपए फी मन से बढ़कर 4700 रुपए मन हो गई। शहरी फट पड़े, कहते हैं महंगाई ने मार दिया, बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते। जिसकी सैलरी 15-20 हजार रुपए है, उसका घर का खर्चा जो है वो 30 हजार रुपए है, वो 10 हजार रुपए कहाँ से लेके आएगा। महंगाई ने तो साथ तोड़ के भाईजान इंसान को जो है ना, वो गरीब आदमी तो बिल्कुल ही मार दिया है, कुछ ये बिलों ने मार दिया है। शहरियों ने हुकूमत और आला हुकाम से अशियाए जरूरिया की कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा कर दिया।